Hello everyone, this is CA Isha Agarwal and today we are going to do our last essay for essay 200 series, that is essay 299, which basically speaks about joint audit. This is going to be one of the shortest essay that you will go through in essay 200 series and also very useful essay while going for audits in case of listed clients or in case of big industry clients or in case of big companies with great turnovers or so, because this essay is usually applied in that kind of industries or that kind of companies only, because small enterprises or small industry won't have or maybe won't be able to take use of this essay wherein joint audit is applied. So joint audit, with the word itself you must be understanding and thinking something of togetherness, मतलब मेरे साथ कोई और भी ऑडिट कर रहा है. For suppose A and company were up to be appointed as auditors, but A and company plus B and company are doing the audit of the company. सिर्फ joint audit is not about कि आपके टीम मेंबर्स के साथ आप joint audit करो, वो तो आप करोगे, आप अकेले तो audit नहीं कर सकते. Joint audit is not within the firm, that is joint audit is basically an external firm is also appointed to do the or to conduct the audit of that company. सो फॉर सपोज ए एंड कंपनी को दे दिया कि चलो आपको ऑडिट करना है, बट उनको लग रहा है कि एरियाज बहुत ज़्यादा है या कंपनी बहुत बड़ी है, दे मे नॉट बी एबल टू डू सो, और द कंपनी फील्स कि अगर ये ऑडिटर काम करेंगे तो दे मे नॉट बी एबल टू डिलीवर एस वैल्यू, क्योंकि कंपनी का साइज इतना बड़ा है या कंपनी में इतने सारे डिविजन है या कंपनी में देयर इज सो मच टू लुक अपॉन. I can't just believe one auditor, so I'll appoint some other auditor too. नाउ वुड यू से कि ये लीगल है यार, इसका फीस शेयर हो जाएगा, कैसे दैट ऑडिटर अग्रीज कि कोई जॉइंट ऑडिट कर दे ऐसे. तो जॉइंट ऑडिटर कैन, द कंपनी कैन अपॉइंट द जॉइंट ऑडिटर एंड द जॉइंट ऑडिटर हैज टू अग्री. ऐसा कुछ नहीं है कि ही कैन रिफ्यूज, यार नहीं मेरा फीस शेयर हो जाएगा तो तुम मत अपॉइंट करो. नो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द कंपनी. इफ दे वांट टू अपॉइंट एन ऑडिटर एक्स्ट्रा, दे वुड अपॉइंट सो. So basically joint audit is found in big companies only, जहाँ पे areas बहुत humongous होते हैं. It's very difficult कि कोई एक जन उसका audit कर रहा है. So usually they appoint 3 to 4 auditors. For suppose in case of big companies like Reliance and all, you will see कि 3-4 auditors का sign है ये. क्यों? क्योंकि company इतनी बड़ी है, company में इतने सारे divisions है, company में इतने सारे sectors है. So it is quite possible one company or one auditor may not be able to audit the whole of the financial statements, and even if they are doing so, वो एक रिलायबिलिटी फैक्टर नहीं आता यार. इतनी बड़ी कंपनी है, आप सिर्फ एक ऑडिटर से कैसे रिलायबल हो सकते हो कि नहीं उसने सारा एरिया चेक किया होगा, आप उसे भी तो लिमिटेड टाइम ही दे रहे हो. सो इट्स यूजुअली बेटर टू अपॉइंट अ जॉइंट ऑडिटर इन केस ऑफ सच कंपनीज. सो जॉइंट ऑडिटर बेसिकली क्या करता क्या है, क्या वो कुछ अलग कर देता है आके या कुछ तीसरा कुछ कर देता है? नो, he'll do the same work as you. आप दोनों अपना areas divide कर लो, that A and company will look at the asset side, B and company will look at the liability side, और A and company will look at the income side, B and company will look at the expenses side. या फिर you both will make sure कि नहीं हम दोनों ने asset liability का कुछ कुछ portion देखना है और साथ में हमें asset का ये portion देखना है, साथ में हमें liability का ये portion देखना है. तो आप वैसे भी कर सकते हो. तो बेसिकली देयर इज अ डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन द ऑडिटर्स वेर इन द ऑडिटर्स डिवाइड द वर्क कि क्या क्या उन्होंने करना है, एंड बाकी बाकी दे डू इट अकॉर्डिंग टू द एलोकेशन जो उन्हें वो डॉक्यूमेंट करते हैं कि फॉर सपोज मैंने बोला कि मैंने असेट्स करनी है, तो ही ए एंड कंपनी इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर असेट्स, बी एंड कंपनी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइबिलिटीज. नाउ विल यू आस्क कि क्या सिर्फ ए एंड कंपनी असेट्स पर अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा या बी एंड कंपनी लाइबिलिटीज पर अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा? ऐसा कुछ नहीं है. The joint auditors, even after allotting work or even after doing some common audit areas, are supposed to issue a common audit report. Just because आपको कंपनी ने 4 ऑडिटर्स को अपॉइंट किया है so that उसका हर फील्ड बहुत अच्छे से चेक हो, मतलब ये नहीं है कि आप 4 ऑडिट रिपोर्ट थमा दोगे. ऑडिट रिपोर्ट एक ही आपको देना है. नाउ वी अंडरस्टैंड फर्दर कि किस सर्कमस्टेंसेस में आप ऑडिट रिपोर्ट भी दूसरा इशू करोगे या ऐसे. But always remember, just because company has appointed too many joint auditors does not mean that the joint auditors will issue a separate report each on the work that has been allotted to them. क्या शेयर एज अ शेयर होल्डर व्हाट वुड आई डू? मैंने असेट्स के लिए एक ऑडिट रिपोर्ट पढ़ना है, लाइबिलिटीज के लिए दूसरा, तो मैं कंपनी एज अ होल को कब जज करूंगा? इट इज वाई कि एक कॉमन ऑडिट रिपोर्ट ही इशू किया जाता है कितने भी जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट हो. So joint audit basic meaning is pooling together expertise and resources of more than one audit firms
to render an expert task within a given time which may be difficult to accomplish by an individual. That is, मैं resources, क्योंकि देखो अब मेरे टीम मेंबर्स हैं, आपके टीम मेंबर्स हैं, ऑब्वियसली मेरे पास रिसोर्सेज ज़्यादा है. अब मैं एक जितना काम करता, माई टीम फॉर सपोज हैड 20 पीपल, तो एक ऑर्डर तो उतना ही ला सकता है, ही कांट ब्रिंग अप 60 पीपल अचानक से. बट मेरे टीम में 20 पीपल है, आपकी टीम में 20 पीपल है, तो टुगेदर कितने 40 लोग काम कर रहे हैं. चलो आप अपना अपना ये काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे वो जब कॉमन काम कर रहे हो तभी तो आप 40 लोग काम कर रहे हो, या फिर अब मेरे को कंसल्ट करना है तो आपकी भी तो टीम में इतने सारे मेंबर्स हैं. हैड आई बीन द सोल ऑडिटर तो मैं तो कंसल्टेशन पे अपने ही टीम में करता, मैं कोई एक्सटर्नल कंसल्टर थोड़ी लेके आता. बट जब दो जॉइंट ऑडिटर्स है या तीन जॉइंट ऑडिटर्स है तो दे कैन कंसल्ट ईच अदर इन द फील्ड्स की नहीं, ये मेरे को इसमें इतनी दिक्कत आ रही है, इसमें आप बोलो इसमें क्या कर सकते हैं. So definitely pulling together expertise, as I said, for consultation and resources. मोर देन वन ऑडिट फर्म, एक से ज़्यादा होगा तभी जॉइंट ऑडिट होगा, वरना एक इज तो एज एन अ सोल ऑडिटर ओनली. देन टू रेंडर एन एक्सपर्ट टास्क विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एज आई सेड कि टाइम उतना ही मिलता है. आप कितनी भी बड़ी कंपनी का ऑडिट करो, आपके पास अगर 2 महीने हैं तो वो 2 महीने ही रहेंगे, 3 महीने हैं तो वो 3 महीने ही रहेंगे. ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी जस्ट बिकॉज बड़ी है तो उन्होंने आपको 6 महीने दे देना, नहीं, उन्होंने 3 महीने ही देना. एंड दे नो यू मे नॉट बी एबल टू अकम्प्लिश द टास्क अलोन इन द 3 मंथ्स, इसीलिए वो आपको एक जॉइंट ऑडिटर देते हैं कि उनका कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रूली करेक्टेड. दे डोंट वांट कि 3 महीने में आप 4 चीज़ मिस करके उनको सिर्फ 6 चीज़ पे रिपोर्ट दे रहे हो या उनका 6 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एस्पेक्ट्स देख के छोड़ दे रहे हो. इसीलिए दे वांट कि उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फुल्ली कवर्ड हो, इसीलिए वो जॉइंट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं. ना यू वुड आस्क कि यार जॉइंट ऑडिटर से ऐसा भी तो हो सकता है, चलो एक्सपर्टाइज ये सब तो आप बोल रहे हो बट प्रॉब्लम्स भी तो राइज हो सकती है. ऑब्वियसली हो सकती है, जिस चीज़ों के एडवांटेजेस होती है, जिस चीज़ के प्रोज होते हैं उनके कॉन्स तो होते हैं, डिसएडवांटेजेस तो होते ही हैं. बट ऑब्वियसली इफ़ यू थिंक फ्रॉम अपर एस्पेक्ट, जनरली एडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं डिसएडवांटेजेस से, कि यू हैव so many people doing the audit, like from the company's point of view वो बहुत बार beneficial होता है. rather than आप देखोगे कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम में ये है, मे बी 1 और 2 ईयर स्टार्टिंग के में वो आएगा, बट जनरली फ्रॉम थर्ड फोर्थ ईयर द ऑडिट इज वेरी स्मूथ एंड इट ऑफर्स गुड हेल्प टू द कंपनी. वाई? बिकॉज देखो मैंने जैसे बोला आपको 3 महीने मिल रहा है, शायद जो सोल ऑडिटर था वो 3 महीने में 6 ही एरिया चेक कर पाता या 7 ही एरिया चेक कर पाता. नो प्रॉब्लम, इवन ही हैज अ गिवन टाइम कंस्ट्रेंट, उनकी भी कुछ लिमिटेशंस है, वो सब नहीं कर सकते उस 3 महीने में. But if together joined with another auditor, your financial statements are being ensured कि वो पूरा करेक्ट है. हो सकता है ना कि कुछ एरिया वो ओवरलुक कर रहा था, बट द जॉइंट ऑडिटर, अदर जॉइंट ऑडिटर दैट यू हैव अपॉइंटेड, इवन नाउ दैट ही हैज बीन ओवरसीइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो भी कर वो एरिया देख के उसे बता दे रहा है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ऐसे भी करेक्ट हो रही है. सो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिशियल है, ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिसएडवांटेजेस आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं. बट इवेंचुअली एज आई सेड इन थर्ड और फोर्थ ईयर अपकमिंग ईयर्स इट यूजुअली गेट्स सॉल्व. बट हाँ, स्टार्टिंग के ईयर्स में ऑडिट करना है डिफिकल्ट, बट फ्रॉम कंपनीज और द क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी गुड. सो दीज आर बेसिकली द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो मैंने आपको ऐसे ही बताया, वही है एडवांटेजेस. एडवांटेज बेसिकली देखो क्या क्या होता है, मन में सोचो कि ये सब ही होगा ही और तो कुछ हो नहीं सकता, इसमें आपको लर्न ही नहीं करना है कुछ भी जॉइंट ऑडिट में. आप ये सब सोचो कि अगर दो जन मिल रहे हैं तो क्या क्या आप एडवांटेज, अगर आप दो टीम्स है आपके पास, दो टीम्स कंबाइंड काम कर रही है तो आपके पास क्या होगा, बेटर क्वालिटी होगी, क्लाइंट को बेटर क्वालिटी मिलेगी. क्लाइंट, अब आप दो जन से या तो वो काम करा रहे हो या 3 जन से वो काम करा रहे हो, कुछ वेरीफाई करा रहे हो कि एक जन के बाद दूसरा जन भी उसे देख रहा है, या सिर्फ आपके पास 3 to 4 माइंड है एक चीज में, तो ऑब्वियसली वो बेटर होगा. आप किसी एक जन से एक काम कराओगे तो ठीक है, मे बी बहुत अच्छा काम हो, बट यार 3 जन से जब एवरी वन इज हैविंग देयर एरिया ओनली, जब वो उस पे पूरा टाइम डिवोट कर सकते हैं तो ऑब्वियसली दे मस्ट बी एक्सेलिंग इन दैट एरिया. मेरे को पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक है मैं अपना अटेंशन किसी किसी एरिया में ज्यादा दूंगी, किसी किसी एरिया में कम. बट हैड आई बीन गिवन ओनली वन एरिया तो मुझे उसी में अटेंशन देना है, तो मैं उसमें तो अपना बेस्ट करूंगी. बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क होता है, लोअर वर्कलोड होता है. अब आपको पूरा फाइनेंस दे देंगे एक बड़ी कंपनी की तो आपको लगेगा यार बहुत काम है बहुत काम है, मैं तो सोऊं नहीं दिन भर काम करूँ तो भी काम नहीं खत्म होता है.
तो इट्स बेटर, आपके ऑल्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका वर्कलोड कम है, आपके एरियाज डिवाइडेड है, तो ऑब्वियसली यू विल हैव लेस वर्क। आपको अपने एरिया के हिसाब से काम करना है एंड फिर कॉमन ऑडिट एरियाज पे काम करना है। एनी विच वे यू आर नॉट ऑडिटिंग द होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आपका वर्कलोड भी कम है। Better expertise, as I said in the definition only, pooling of resources and expertise. अगर as a chartered accountant, as a chartered accountant तीन या चार जन अपॉइंटेड है एज ऑडिटर्स एज सीएस, तो फिर आपके लिए वो बेनिफिशियरी है ना, आपका तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस चारों का मिलके ही आ रहा है। किसी एक ने कोई अमेंडमेंट मिस किया तो कोई और बता देगा, कुछ कुछ और ने कुछ मिस किया तो कोई और बता देगा। सोल ऑडिटर ने तो जो मिस किया वो मिस किया, अब क्लाइंट तो उसमें कुछ ही नहीं कर सकता, बट इसमें तो जो मिस करेगा वो दूसरा उसमें बता सकता है ना। सो यू आर हैविंग अ कॉम्पिटेंस ऑफ 4 और 5 जॉइंट राइटर्स, तो वो एनी विच वे आपको बेटर एक्सपर्टाइज ऑफर करेगा। फिर इन केस ऑफ आपका लोअर स्टाफिंग कॉस्ट होता है, हैड आई डन अलोन तो फिर मेरे को शायद 40 या 60 पीपल लगाने होते हैं इसी ऑडिट में। बट ऐसा नहीं है, अब मैं जॉइंट ऑडिट कर रहा हूँ, मेरे पास मेरे रेस्पेक्टिव एरियाज, तो शायद 10 जन से भी काम हो जाए या 5 जन से भी काम हो जाए, तो आपका स्टाफिंग कॉस्ट भी लोअर होता है। फिर इन केस जब आपका बड़े एंटिटीज में अगर आप अपॉइंटेड हो और लोकल ऑडिटर भी अपॉइंटेड है, फॉर सपोज वन ऑफ द बिग फोर्स इज अपॉइंटेड एंड वन लोकल फर्म फ्रॉम दैट सिटी इज अपॉइंटेड, तो आप क्या होता है बेनिफिशियल होता है कि देखो अब बिग फोर है तो इसका मतलब ये नहीं कि दे आर वेरी प्रो एंड लोकल लॉज एंड रेगुलेशन। तो जो लोकल ऑडिटर है आप उसमें हेल्प लो, उसकी लोकल कनेक्शंस में हेल्प लो कि आप लोकल लॉ से अबाइड बाय कर रहे हो कि नहीं आप, या फिर अगर आपको कोई रजिस्टर चाहिए लोकल लॉ का या ऐसा कुछ, तो आप उनकी हेल्प लो, ऑब्वियसली दे मस्ट बी नोइंग बेटर। तो इस चीज में भी काम आता है। हैड आई जस्ट अपॉइंटेड द लोकल ऑडिटर तो मे बी मैं उतना अच्छा क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं आता, और हैड आई जस्ट अपॉइंटेड बिग फोर तो मे बी शायद मैं लॉज एंड रेगुलेशन जो मेरे लोकल कंप्लायंस है उसमें कहीं छूट जाती, बट जब मैं जॉइंटली दोनों को ऑडिट कर रही हूँ तो मेरा दोनों काम हो जा रहा है। These were some of the advantages. Once again I will say advantages बहुत है क्लाइंट एंड से, बहुत है डिसएडवांटेजेस कुछ ऑडिटर एंड से है, बट या इवेंचुअली इफ दे ओवरकम इट उनके लिए भी बेनिफिशियल है। तो बेसिक डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे पहला तो फीस बीइंग शेयर्ड। अब आप मेरे को ही पूरा 100 रुपये दे रहे थे और फिर आप अचानक से बोलोगे नहीं नहीं मैं तो 40 40 20 ऐसे दूंगा, या फिर मैं 30 रुपीज तुम्हें दूंगा, मैं किसी और को 70 रुपीज दूंगा, तो माथा तो खराब होगा। तो आपको भी लगेगा नहीं यार मुझे नहीं करना, 100 रुपये पहले मुझे पूरे मिल रहे थे, मैं काम तो पैसे के लिए कर रहा हूँ बट मुझे नहीं करना। तो एक तो ये फीस बीइंग शेयर्ड वाली प्रॉब्लम आती ही है। तो जैसे आप बोलोगे ना जॉइंट पर्टर क्यों अपॉइंट कर रहे हो, मैं कर लूंगा, आई गेट मोर टीम मेंबर्स, आई मैनेज समहाउ, बट वो नहीं होगा, इवन द क्लाइंट नोज। तो एक तो आ जाता है फीस बीइंग शेयर्ड। फिर हो जाता है यार सब सीएस है, कोई ज़्यादा इयर्स ऑफ प्रैक्टिस है जिस किसी की, किसी कम है, तो एक वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है जब आप डिफरेंट काइंड्स को, जैसे मैंने बोला ना बिग फोर और लोकल को, तो उनमें क्या होगा ना, लोकल वाले में एक वो आ जाएगा यार ये तो बिग फोर है, इन्हीं को ज्यादा फीस मिल रहा होगा, यही बेटर है, वाई विल आई वर्क, उन्होंने मुझे अपॉइंट ही क्यों किया है, जरूरत ही नहीं थी मेरी अपॉइंटमेंट की, ये फिर मैं तो क्या ही काम करूंगा, दे विल एनी टाइम डिसलाइक माई वर्क ओनली, कि उनका क्वालिटी तो बेटर है, तो एक वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है। फिर बिग फोर वालों का भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, यार मैं तो बिग फोर हूँ, ये क्या लोकल चिंदी फॉर्म है, ऑब्वियसली आई विल डू माई वर्क बेस्ट, इनका तो कोई फाइल्स पढ़ेगा भी नहीं देखेगा भी नहीं, तो एक वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाती है। फिर एक है कि अनसर्टेनिटी अबाउट द लाइबिलिटी ऑफ वर्क, आप कितना ही वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट बना दो लास्ट में भी ये आएगा कहीं से कि ये तो तुमने बताया ही नहीं था, ये तो तुमने देखा ही नहीं था, ये तो तुम्हें देखना था, ये मुझे देखना था, लास्ट में लॉस क्या है क्लाइंट का, तुम्हें देखना था मुझे देखना था, लास्ट क्लाइंट का लॉस है। आप दोनों ने मिलके वही एरिया ऑडिट नहीं किया, अपने कंफ्यूजन में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो तो यू इंश्योर अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो बहुत बड़ा लॉस है फ्रॉम क्लाइंट एंड, बिकॉज आपके कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एरियाज हमेशा छूटे रह जाएंगे विद द एक्सपेक्टेशन दैट द अदर पर्सन इज सपोज टू डू इट। चलो वो एक बार के लिए मैं मान लिया कि जो वर्क डिवाइड हुआ है वो आप दोनों ने कर लिया, जो कॉमन ऑडिट एरियाज है वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं करवाने, बिकॉज देर से नहीं मेरे पास एरिया ज़्यादा था, नहीं तुम्हारे पास एरिया ज़्यादा था, ऐसा था वैसा था, तुम करो मैं करूँ, वो रह जाएगा। It's always better to ensure a coordinated team of joint auditors rather than कि बस किसी को भी ले आया जिसका मन किया, नो,
इंश्योर कि आप पैरिटी ला रहे हो, इंश्योर कि आप सबको वो वैल्यू दे पा रहे हो, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग एज अ क्लाइंट टू डिलीवर देम गुड वैल्यू, विच इज वाई यू हैव अपॉइंटेड द जॉइंट ऑडिटर्स कि मैं तीनों की एक्सपर्टाइज दूंगा या चारों की एक्सपर्टाइज दूंगा। मेक श्योर इवन यू मेक देम फील वैल्यू। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिग फोर है तो बस बिग फोर लोकल फर्म को छोड़ ही दिया, ऐसा मत करो। Offer them the same value, offer them the same recognition, so that even they don't have these problems in mind कि नहीं यार उनको ज़्यादा है, मैं काम क्यों करूँ, मेरा काम तो डिस्रिगार्ड हो जाएगा, कोई देखेगा नहीं। डोंट मेक देम फील सो। The more you make them coordinated and feel like a team, the more it is beneficial to you only। एज अ क्लाइंट मैं जितना उनको कोऑर्डिनेटेड रखूंगा, जितना उनको कोऑपरेटिव रखूंगा, वो मेरे लिए हेल्पफुल है कि वो और बेटर मेरे को वैल्यू डिलीवर करेंगे। वेरएज अगर आप झगड़ा लगाने लग जाओगे तो वो अल्टीमेटली आपका ही लॉस है कि आपके ही एरियाज बचे रह जाएंगे। तो वन बिग प्रॉब्लम विद जॉइंट ऑडिट इज कोऑर्डिनेशन, बट अगर वो है तो फिर एडवांटेजेस ही एडवांटेज है, डिसएडवांटेज बहुत कम मिलेंगे आपको जॉइंट ऑडिट में। ठीक है, तो अब हमने समझ लिया एडवांटेज डिसएडवांटेज, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलो अल्टीमेटली क्लाइंट ने फैसला कर लिया कि जॉइंट ऑडिट करवाना है, तो जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट हो गए, ए एन कंपनी, बी एन कंपनी एंड सी एन कंपनी। बट अब आगे क्या? सबसे पहले आती है ऑडिट में हमारी प्लानिंग। तो प्लानिंग कौन करेगा? तीनों के एंगेजमेंट पार्टनर, दैट इज द साइनिंग पार्टनर, और जो की टीम मेंबर्स है, सपोज कि असिस्टेंट मैनेजर्स हो गए या मैनेजर्स हो गए जो भी हैंडल करने वाले हैं सब लेवल पे ऑडिट, वो सब प्लानिंग में इन्वॉल्व होंगे, वो सब मिलके प्लान करेंगे। फिर वो लोग प्लान की बनाएंगे स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी जो आपका स्कोप टाइम एंड डायरेक्शन, मतलब जो आपका कैसे आपको ऑडिट करना है वो सेट आउट करेगा, कैसे प्लान एग्जीक्यूट करना है वो सेट आउट करेगा। सो बेसिकली प्लान में क्या क्या होता है, पहले तो वर्क डिवाइड कर लो तीनों में, सबसे इम्पोर्टेंट वर्क डिवाइड कर लो कि मैंने ये करना है, तुमने ये करना है, तीसरे ने ये करना है, प्लस हम तीनों ने मिला के ये बचे हुए एरियाज करना है। फॉर सपोज मैंने ले लिया कि ए एन कंपनी ने ले लिया असेट्स, बी एन कंपनी ने ले लिया लाइबिलिटीज एंड सी एन कंपनी ने ले लिया इनकम। अब आपने बोला चलो एक्सपेंसेस बचे, एक्सपेंसेस हम तीनों मिलके करेंगे। सबसे पहला काम एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क, आप पहले वर्क डिवाइड कर दो और कॉमन एरियाज आपको क्या क्या रखना है वो देख लो। फिर आपको देखना है कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस एंगेजमेंट की, कि हमने क्या क्या रिपोर्ट करना है, इस कंपनी में क्या क्या एप्लीकेबिलिटी है जो हमने करना है। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करने से नहीं होगा, आपको तो रिपोर्टिंग का भी देखना होगा कि क्या क्या रिपोर्ट करना है, तो अकॉर्डिंगली मेरे को वैसे भी काम करना है। फॉर सपोज कि इस कंपनी पे कारो एप्लीकेबल है तो मुझे कारो रिपोर्टिंग भी देनी है, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट इशू होगी, एक ऑडिट रिपोर्ट तो इशू होगा नहीं इंडिविजुअल वाला, तो हम तीनों ने ही संभालना है कि क्या जाना है, तो फिर हम तीनों को एक कारों पे काम करना है। उसमें तो कोई डिवीजन होगा नहीं। हाँ चलो ये है कि लाइबिलिटी से रिलेटेड जितने कारो क्लॉजेस है वो मैं कर लूंगा, असेट से तुम कर लो, पीएल से जितना है वो तुम कर लो, पर आपको डिफाइन तो करने होंगे ना रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तभी तो आप वो सब डिफाइन कर पाओगे कि किसको क्या क्या काम करना है। फिर जो भी आपने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज जो हमने ऐसे 210 में पढ़ा था इफ़ यू रिमेंबर, वो सब कंडक्ट किए, उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी है या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर येट टू बी मेड, या फिर क्या है कंपनी का पर्सपेक्टिव, हाउ इज मैनेजमेंट बिहेविंग, वेदर दे आर प्रोवाइडिंग रिक्वायरमेंट्स और नॉट, ये सिर्फ आप तीनों ही मिलकर डिस्कस करो बिकॉज रिक्वायरमेंट्स तो आप तीनों को चाहिए। ऐसा तो नहीं है अब सपोज मैंने बोला चलो मुझे एसेट्स की रिक्वायरमेंट मिल गया, मैं करके 2 महीना में चला गया, अरे पर जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है ना, ऐसा कौन सा कि 2 महीने में करके चले गए तो चले ही गए, आपको तो ऑडिट रिपोर्ट साथ में मिलकर इशू करना चाहिए। यू विल हैव टू, यू थ्री टुगेदर विल हैव टू डिस्कस की रिक्वायरमेंट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं कि नहीं बने। आपको मैं बार बार बोली जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट इशू होगा, इंडिविजुअल ऑडिट रिपोर्ट इशू होता है तो चलो बात किया कि चलो मैंने रिक्वायरमेंट देखी और चली गई, नहीं मेरे को तो साथ में ही जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है, मैं तो नहीं कर सकती उस ऑडिट रिपोर्ट में एसेट्स का लिख दिया चलो हो गया, नहीं। I'll have to ensure that my audit report is up to mark. Not कि मेरा इंडिविजुअल वो जॉइंट है तो क्या हुआ, मैं इसमें अलग से साइन तो कर ही रही हूँ नीचे। So you anyway have to make sure that the audit report complies with the standards and everything. तो you will have to discuss you three की engagement activities का results क्या था, या how is management behaving, या क्या क्या changes किए या क्या क्या हमने और करना चाहिए। फिर उसके बाद
आप लोग तीनों डिस्कस कर लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के कि रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट्स क्या है, मतलब क्या क्या रिस्क है इस कंपनीज में, क्या क्या हमने लगाना है, क्या क्या कैसे प्लान करना है, क्या क्या डायरेक्शन देनी है, सुपरविजन करना है, या फिर हाउ शुड वी प्रोसीड इन द ऑडिट, या फिर किस किस एरियाज में ज़्यादा आपको लग रहा है। जैसे मैंने असेट्स किया तो मुझे लग रहा है कि नहीं असेट्स में मुझे पीपी में ज़्यादा टाइम देना है, उसमें ज़्यादा रिस्क लग रहा है। किसी ने लाइबिलिटीज लिया तो आप ऐसे डिस्कस कर लो आप तीनों कि आपको क्या क्या लग रहा है कि किस किस में रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ज़्यादा है। पहले आप बना लो अपना कि क्या क्या है आपका एरियाज के हिसाब से रिस्क, या फिर आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेट एफएसए में मेरा एरिया नहीं है बट किसी और का एरिया है बट उसमें रिस्क ज़्यादा है, तो वो सब आप डिस्कस कर लो। बिकॉज येट अगेन वर्क डिवाइड हो गया है, पर आप कुछ चीज़ों के लिए तो टुगेदर रिस्पॉन्सिबल हो ना। ये सब तो प्लानिंग फेज है, इसके लिए तो आप साथ में ही रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये सब रिस्क क्या क्या है, कैसे कैसे डायरेक्ट करना है, हाउ टू प्रोसीड एन ऑडिट, ये सब आप लोग साथ में डिस्कस कर। फर्दर जो आपका जो लेटर्स जाएंगे दैट इज एंगेजमेंट लेटर और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, वो कॉमन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर ऑडिटर अलग अलग, नहीं, वो जॉइंट ऑडिटर के नाम से जाएगा, क्योंकि जब ऑडिट रिपोर्ट जॉइंटली इशू हो रही है फिर सारा जो काम है जो भी मैनेजमेंट कम्युनिकेशन है वो जॉइंटली ही होगा। तो जो भी रिप्रेजेंटेशन लेटर्स है, एंगेजमेंट लेटर्स है, वो भेज दो कॉमन वाला। फिर उसके बाद वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट दैट इज बेसिकली स्पेसिफाइज कि कौन क्या क्या काम करेगा, किसका किसका कॉमन ऑडिट एरियाज है, वो साइन कर दो और वो टीसीडब्ल्यूजी को भी बता दो या मैनेजमेंट को भी बता दो, सो दैट इवन दे नो कि कल को उस एरिया में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो किस जॉइंट ऑडिटर से मेनली कम्युनिकेट करना है। अब सपोज असेट में कोई दिक्कत आ रही है तो ए एन कंपनी को बोलूँगी, मैं अचानक से जाके सी एन कंपनी को बोलूँगी क्या ये ऑडिट किया, चेक ही नहीं किया, तो हाउ वुड ही बी अवेयर। ऑब्वियसली ऊपर ऊपर उसको पता होगा कि चलो ये एरिया में हुआ, बट अंदर से तो उसको कुछ पता ही नहीं उस एरिया में एक्चुअली चल क्या रहा है, क्योंकि उसने तो ऑडिट नहीं किया। उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखिए, वो आपको ऊपर से एस्पेक्ट्स बता सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से जो दिख रहा है या फिर जो भी ही हैड द डिस्कशन विद एएन कंपनी, वो सब वो बता सकता है। बट एक्चुअल ऑडिट तो ए एन कंपनी ने किए उस एरिया की, तो बेटर एक्सप्लेनेशन तो ए एन कंपनी दे पाएगा। तो एक लेटर बनवा के एंड वर्क एलोकेशन बना के वो टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट कर दो कि देखो भैया ये हमारे एरिया से ऐसे ऐसे हम प्रोसीड करने वाले हैं, ये हमारा स्कोप है, ऐसा ऐसा हमने रॉन्ग डिफाइन किया है और ऐसे ऐसे वील फर्दर स्ट्रेटेजाइज एंड प्लान कि हमने ऐसे ऐसे किया है तो हम ऐसे ऐसे आगे प्रोसीड करेंगे। मैंने बोला नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स दैट इज आपका प्लानिंग, जो भी आपका है जो भी वो आप डिस्कस कर लो अब आपस में कि क्या क्या है कॉमन एरियाज के लिए, या फिर जो आपका अपने अपने एरियाज भी है वो आप डिस्कस कर लो कि देखो हम ऐसे प्रोसीड करने वाले हैं, ऐसा होना चाहिए। एंड इफ़ यू वांट सम हेल्प, इफ द अदर ऑल्टर्स वांट सम हेल्प कि हमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए, हाँ आपको क्या लग रहा है इसमें क्या करना चाहिए, तो वो सब आप डिस्कस कर लो एंड आगे यू कैन कंटिन्यू द ऑडिट सो दैट इवन यू कैन कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट। आप जब मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करोगे तो आपको तो तीनों का ही वर्क प्रोफाइल करना होगा कि ऐसा ऐसा है, हम तीनों ने सोचा है, दिस इज हाउ वी प्रोसीड, दिस इज हाउ वी डिमांड द रिक्वायरमेंट्स, दिस इज हाउ वील फ्लोट यू द ऑब्जर्वेशंस और दिस इज हाउ वील गिव यू द रिजल्ट्स। तो वो तो आपको तीनों का टुगेदर ही बताना पड़ेगा। आप तो नहीं कर सकते कि एन कंपनी ने सब सोची है, बी एन कंपनी सोच रहा है तो मैं आपको बी एन कंपनी का 2 महीने बाद बताऊँ, नो, यू हैव टू डू इट टुगेदर। तो प्लान ये सब कर लो एंड देन प्रोवाइड द मैनेजमेंट विद द वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट एंड जो भी उनके लेटर्स हैं। ठीक है, अब ये हो गया कि आपने जॉइंट ऑडिट प्लान भी बना लिया, एडवांटेजेस ये सब देख लिए, जॉइंट ऑडिट सीख लिया। अब जॉइंट ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है। देखो हर जॉइंट ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका डिवाइडेड एरिया तो है ही। तो जैसे मुझे असेट्स में है तो असेट्स तो मेरी जिम्मेदारी है ही, उसके अलावा मेरी क्या क्या जिम्मेदारी है। उसके अलावा सबसे पहले तो जो भी कॉमन ऑडिट एरियाज है उसमें हम इक्वली एंड जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता उसमें मैं पिछड़ जाऊँ बल्कि यार मेरे पास असेट्स था, असेट्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था करना, तो ऑल्दो ये कॉमन ऑडिट एरिया है बट मैं बहुत थक गई हूँ या फिर मुझसे नहीं होगा तो मेरे को साइड कर दो। नहीं, जब वो कॉमन ऑडिट एरिया है तो यू थ्री हैव टू पुट इक्वल एफर्ट्स। कुछ बेसिक कुछ कम चलेगा थोड़ा सा, बट ऐसा नहीं कि आप पूरा बैकआउट कर जाओ कि नहीं मैंने करना ही नहीं है, नहीं। कॉमन ऑडिट एरिया के लिए और इक्वली एंड जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल। फर्दर कल को अगर मैनेजमेंट उस एरिया के लिए बोलते हैं तो आप तीनों हेड रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे बोला ना कि अगर असेट्स के लिए मैनेजमेंट को कुछ पूछना है तो चलो वो सी एन कंपनी को रिस्पॉन्सिबल नहीं है करके ए एन कंपनी को कर सकता है, बट कोई कॉमन ऑडिट एरिया तो ए एन कंपनी, बी एन कंपनी, सी एन कंपनी तीनों रिस्पॉन्सिबल होंगी उसके लिए। ये हो गया।
फिर जो भी जॉइंट ऑडिट प्लान आपने बनाया, जो भी डिस्कशन किए फॉर द कॉमन एरियाज की नहीं यार, हाँ, ऐसे नहीं, ऐसा करना है हमने इस एरिया में, या फिर कोई जजमेंट में आपने कोई डिसीजन बनाया अकाउंटिंग जजमेंट या अकाउंटिंग पॉलिसी में या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में कि नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा ही हम कम्युनिकेट करेंगे मैनेजमेंट को, या हम तीनों को ऐसा ही लगता है, तो उसके लिए आप जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल हुए कि चलो कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट हुआ, आप तीनों को ही वो गलत लग रहा है कंपनी के लिए, तो उस तीनों के लिए आप उसके लिए आप तीनों ही रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे तो नहीं है सिर्फ एक जन रिस्पॉन्सिबल होगा, डिसीजन तो आपने तीनों ने ही लिया है। फिर उसके बाद और क्या हो गया आपका, कि आपका प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, एज आई सेड। कल को सीएन कंपनी को कोई एसेट के लिए पूछेगा तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो पता होगा, अंदर से नहीं पता होगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आप तीनों ने इंश्योर करने, क्योंकि जब आप ऑडिट रिपोर्ट कॉमन इशू कर रहे हो तो अभी आपको इंश्योर करना है जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जा रही है वो सही जा रही है। ऐसा नहीं है कि चलो असेट का डिस्क्लोजर सब सही है ना, चलो बस लाइबिलिटी जो हो रहा है होने दो, नहीं। यू शुड मेक श्योर कि इट हैज़ अप्रोप्रिएट नोट्स, सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, सारा कंपोनेंट्स सब है। तो आप तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक की नहीं है। फिर जो भी आपका ऑडिट रिपोर्ट है वो एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है, दैट इज मैंने पहले बोला, जब कॉमन ऑडिट रिपोर्ट है तो यू हैव टू मेक श्योर जो भी ऑडिट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स है जो भी है वो आप फुलफिल कर रहे हो, जो भी ऑडिट रिपोर्ट जैसे इशू होना चाहिए वैसा ही है। ये सोच के चलो जॉइंट है वो देख लेगा, मैं बाद में देख लूंगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली एज आई सेड, आप उसमें अलग से साइन तो कर रहे हो, even you are responsible for that audit report, so always make sure that the audit report is as per the standards। ये हो गया। फिर आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एज पर लॉज एंड रेगुलेशंस है, वो भी आप तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप तो नहीं बोल सकते चलो असेट में लॉज फॉलो हुए लाइबिलिटीज में नहीं। अरे नहीं हुए तो नहीं, क्या हुआ, शेयर होल्डर्स जब देखेंगे तो वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल देखेंगे, वो तो नहीं देखेंगे ओ एन कंपनी ने असेट्स किया है, तो ए रिस्पॉन्स यहाँ पे लॉज एंड रेगुलेशन नहीं लगे तो ए एन कंपनी को पकड़ो, नहीं, दे हैंड ओवर द कंपनी कि आपने कैसा ऑडिटर अपॉइंट किया है। कंपनी आप चाहे जाके किसको भी बोले, पर उन्होंने बोले ऑडिटर कैसा अपॉइंट किया, ऑडिटर्स। और ये कि ए एन कंपनी को क्यों अपॉइंट किया, बी एन, वो उतना मतलब नहीं होगा उनको, उनको डायरेक्टली मतलब उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तो ऑडिटर कैसा है। ऐसा नहीं है कि वाओ ए एन कंपनी वेरी गुड, कोई आपको कभी भी आपके, अगर आपने जॉइंट ऑडिट करा रखी है लिस्टेड एंटिटी में और किसी ये शेयर होल्डर को प्रॉब्लम है, तो वो आके कभी आपको ये नहीं बोलेगा यार ए एन कंपनी को क्यों अपॉइंट किया, बी एन कंपनी को क्यों अपॉइंट किया, डी एन कंपनी को नहीं, दे से कि ऑल्टर ही आपने गलत अपॉइंट किया। दे वोंट केयर कि बी एन कंपनी ने कितने अच्छा काम किया होगा और ए एन कंपनी ने काम नहीं किया होगा, दे वोंट, दे वुड सिंपली से ऑडिटर कैसा अपॉइंट किया। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप ये सब चीज से आप तीनों ध्यान दे रहे हो, किसी एक को नहीं, आप तीनों ने ध्यान देना है इस पे। अब लास्टली आता है जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट। सो जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट बेसिकली होता क्या है, तो जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट जैसे मैंने बोला था कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इशू होगा, वही जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट होता है, तीनों जन मिलके जो ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं। तो मैंने बोला ना, शेयर होल्डर्स विल सी यू एज एन ऑडिटर। शेयर होल्डर्स वोंट सी कि ए एन कंपनी कैसा है, बी एन कंपनी कैसा है, सी एन कंपनी, दे वुड सी कि ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी कैसे है। So you are required to issue joint audit report, but in certain some circumstances you can issue an individual audit report। कब, अब सपोज ऑडिट रिपोर्ट में आपने ऑडिट रिपोर्ट जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, पर आपको लगता है कि जो ओपिनियन गिवन है वो गलत है, मतलब आपको लग रहा है कि ऑल्दो उसमें लिखा हुआ है कि अनक्वालिफाइड है, आपको लगता है नहीं मैंने एरिया चेक किया, मुझे लगता है मॉडिफाइड ओपिनियन होना चाहिए, इस कंपनी में तो गलत कुछ चल रहा है, बट हो सकता है कि जॉइंट ऑडिटर्स तीनों नहीं माने। फॉर सपोज तीन है तो दो बोल रहे हैं कि नहीं यार अनक्वालिफाइड ओपिनियन होना चाहिए, तो फिर शायद जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट में अनक्वालिफाइड ओपिनियन चल जाए, बट आपको लगता है नहीं, यू शुड मेक द शेयर होल्डर्स अवेयर एंड मॉडिफाइड ओपिनियन होना चाहिए। या फिर कुछ भी ऐसा ऑडिट रिपोर्ट में जा रहा है जो आपको लगता है सही नहीं है, या जो आपको लगता है चेंज होना चाहिए, तो ये सब सर्कमस्टेंसेज में आप क्या करो, आप एक इंडिविजुअल ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दो। लेट द जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट बी, वो तो इशू हो गए, उसके साथ आप एक इंडिविजुअल ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दो, प्लस जो जॉइंट ऑडिट जब इशू हो रहा है तो उसमें एक रेफरेंस दे दो, रेफर टू दिस इंडिविजुअल ऑडिट रिपोर्ट टू। तो क्या होगा, शेयर होल्डर्स ने जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट पढ़ लिया, ऑडिटर्स का पर्सपेक्टिव पढ़ लिया, अब क्योंकि आपको लगता है कि नहीं शेयर होल्डर्स को ये पता होना चाहिए या इस एरिया में कुछ और भी होना चाहिए, तो वो आपके इंडिविजुअल ऑडिट रिपोर्ट को रेफर कर देंगे। तो इन एनी विच वे आपको जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट इशू करना है, प्लस अगर आपको लग रहा है कि नहीं जॉइंट ऑडिट में कोई दिक्कत है या फिर कुछ और होना चाहिए था ऑडिट रिपोर्ट में, तो आप एक इंडिविजुअल ऑडिट रिपोर्ट भी इशू कर दो, वो भी शेयर होल्डर्स पढ़ लेंगे।
So yeah, this was basically joint audit from my side. I hope I could make you understand a very short and simple essay. And also अगर मतलब आप precisely इसको पढ़ोगे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा है, कुछ आपको ऐसा लर्न करने टाइप्स का कुछ नहीं है कि नहीं ये याद करना है। मेरे को लगता है जैसे जैसे यू विल अंडरस्टैंड एंड गो विद द फ्लो वैसे ही याद हो जाएगा. So yeah, thank you once again. And if you are watching this video just before the exams, watch it at 1.5x so that it serves as a quick revision for you. I hope I could make you understand this essay and I hope you enjoyed the 200 series. Thank you.